Hello everyone. Today we are going to talk about methods of measuring price elasticity of demand. 1 minute. Methods of measuring price elasticity of demand. There are three methods of measuring price elasticity of demand. First is percentage method. Second one is point method. Third one is total outlay method. We will talk about all these methods in detail one by one. First of all, let us consider percentage method. Percentage method of measuring price elasticity of demand. This method is also known as flux method. Flux method, proportionate method, proportionate method, mathematical method, these are the other names of percentage method. This method was developed by Alfred Marshall. According to this method, elasticity is measured as the ratio of percentage change in quantity demanded to the percentage change in the price of the particular commodity.
So what this method tells us, it with the help of this method, elasticity is measured as ratio of percentage change in quantity demanded to the percentage change in price of the particular commodity. We simply represent price elasticity of demand as ED, which is equal to, we are going to write formula of the percentage method by which we can compute or calculate value of elasticity of demand. So ED equal to percentage change in quantity demanded upon percentage change in price. So percentage change in quantity demanded. What do you mean by this? So percentage change means change in quantity demanded to the initial quantity of the price multiplied by 100. This is your percentage change in quantity demanded, this numerator part. Now what about this denominator part? It will be written like that: change in price to the initial price multiplied by 100. So this is percentage change in price and this is percentage change in quantity. Now this 100 will be cancelled out by other 100 and we are left with this formula: delta Q upon Q upon delta P upon P. So this is another term and this is a different term. This term is known as proportionate change in quantity demanded. This term is known as proportionate change in price. So this method we can also define as proportionate ratio of proportionate change in quantity demanded to the proportionate change in price. So we have seen the name of this method as proportionate method. So this is our proportionate method. This is another formula for measuring price elasticity of demand with the help of percentage method. Now we can write it delta Q upon Q. Here it will be multiplied, this sign will multiply and this ratio will reverse. Delta P. So P by Q into delta Q by delta P. This will be your new formula. Of elasticity of demand. We can also here write proportionate change in quantity demanded
to the proportionate change in so this is our percentage method। तो अभी तक हमने क्या बात की कि मेथड्स ऑफ मेजरिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को कैसे मेजर किया जाएगा, तो देयर आर 3 मेथड्स ऑफ मेजरिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। पहला हमारा है परसेंटेज मेथड, दूसरा पॉइंट मेथड और तीसरा है टोटल आउटले मेथड। तो सबसे पहले हम बात करते हैं परसेंटेज मेथड की। तो ये जो परसेंटेज मेथड है इसे फ्लक्स मेथड, प्रोपोर्शनेट मेथड, मैथमेटिकल मेथड भी कहा जाता है। इसको डेवलप करने का श्रेय अल्फ्रेड मार्शल को जाता है। इसकी डिफिनीशन हो सकती है इलास्टिसिटी इज मेजर्ड एज द रेशियो ऑफ परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड टू द परसेंटेज चेंज इन द प्राइस ऑफ द पर्टिकुलर कमोडिटी। तो सिंपली इसी को हमने मैथमेटिकल फॉर्म में लिख लिया। ईडी जो कि हमारा प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को रिप्रेजेंट कर रहा है, इट इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन द प्राइस। अब परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड का मतलब क्या होता है, जब प्राइस क्वांटिटी में चेंज होगा तो उसे हम डेल्टा क्यू दिखाएंगे, डेल्टा क्यू अपॉन क्यू। तो ये हो गया परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। इसी तरीके से परसेंटेज चेंज इन प्राइस भी आएगा आपका डेल्टा पी अपॉन पी इंटू 100। तो हमने परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड की जगह क्या रख दिया, डेल्टा क्यू अपॉन क्यू मल्टीप्लाइड बाई 100 अपॉन डेल्टा पी अपॉन पी मल्टीप्लाइड बाई 100। अब ये 100 से 100 कैंसिल आउट हो जाएगा। हम लोगों के पास जो बचेगा वो होगा डेल्टा क्यू अपॉन क्यू डिवाइडेड बाई डेल्टा पी अपॉन पी। तो इस न्यूमरेटर को हम बोलते हैं प्रोपोर्शनेट चेंज, इनिशियल चेंज अपॉन चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड टू द इनिशियल क्वांटिटी। इसको हम बोलते हैं प्रोपोर्शनेट चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। और इस डेल्टा पी बाई पी को हम बोलते हैं प्रोपोर्शनेट चेंज इन प्राइस। तो इसीलिए इस मेथड का नाम होता है प्रोपोर्शनेट मेथड, यानी कि ये इट इज रेशियो ऑफ प्रोपोर्शनेट चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड टू द प्रोपोर्शनेट चेंज इन प्राइस। इसको हमने ऐसे भी लिख लिया। अब क्या होगा, ये जो डिवाइड होता है इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे। जब इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये जो नीचे वाला है वो ऊपर चला जाता है, ऊपर वाला नीचे आ जाता है। तो ये आपका P ऊपर चला गया, डेल्टा P नीचे हो गया। अब हमने क्या करना है कि जो P है और जो Q है उसे एक साथ रख लेंगे, डेल्टा Q और डेल्टा P को एक साथ रखेंगे। तो ये था हमारा प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। हम बात करते हैं एक एग्जाम्पल से इसे को समझने की। तो अगर हम एक एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल हो सकता है कैलकुलेट प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड if demand increases from 4 units to 5 units due to fall in price from, लिख ही देते हैं इसको, कैलकुलेट प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ED if demand increases from 4 units to
5 units due to fall in price. From 10 rupees to 8 rupees. अब इसे हम सॉल्व करेंगे। हमारे पास इतनी इंफॉर्मेशन है, इस इंफॉर्मेशन की सहायता से हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को कंप्यूट करेंगे। तो सबसे पहले हमें कोई भी जब क्वेश्चन सॉल्व करना होता है तो हमें देखना पड़ता है कि हमारे पास क्या क्या इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। तो हम लिखते हैं गिवन, तो ये 4 यूनिट टू 5 यूनिट्स, डिमांड इंक्रीज फ्रॉम 4 यूनिट टू 5 यूनिट। तो ये जो यूनिट्स है, क्वांटिटी डिमांडेड है, इसको हम दिखाते हैं Q1। Q1 क्या है आपका 4 यूनिट, यही क्या आपकी है इनिशियल क्वांटिटी है, इनिशियल क्वांटिटी डिमांडेड है। दूसरा है Q2। Q2 क्या है आपका 5 यूनिट। इसी तरीके से आपका प्राइस है, इनिशियल प्राइस आपका 10 रुपीज, P1 10 रुपीज, और P2 आपका है 8 रुपीज। ये कह रहा है कि जब प्राइस 8 रुपीज से 10 रुपीज से 8 रुपये होती है, यानी प्राइस गिरती है, तो क्या होगी आपकी, सीधी सी बात है डिमांड बढ़ेगी। तो जब प्राइस आपकी 10 से 8 रुपीज होती है तो जो डिमांड है वो 4 यूनिट से बढ़कर 5 हो जाती है। तो आपको निकालना है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होगा, यही हमारी समस्या है। तो हमें पता होना चाहिए इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फॉर्मूला ED क्या होता है आपका, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। हमने इसे लिखा था डेल्टा Q अपॉन Q मल्टीप्लाइड बाय 100 अपॉन डेल्टा P बाई P इंटू 100। ये आपका 100 से 100 कैंसिल आउट भी हो जा रहा था। हमारे पास जो फार्मूला बचा हुआ था वो ऐसा था, डेल्टा Q अपॉन Q डिवाइडेड बाई डेल्टा P अपॉन P। तो इसको हम कई मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, हम ऐसे सॉल्व कर रहे हैं। तो अब हमारे सामने समस्या आती है कि डेल्टा Q क्या है। डेल्टा Q इज नथिंग बट योर चेंज इन द क्वांटिटी। तो चेंज कितना हुआ है हमारा, देखिए Q पहले 4 था, Q2 5 हो गया, तो डेल्टा Q क्या हुआ है Q2 माइनस Q1। बाद वाले में से पहले वाले को हम माइनस कर देंगे। तो ये था आपका 5 माइनस 4 यानी 1। तो ये जो डेल्टा Q है वो क्या हो गया 1 हो गया। इसी तरीके से डेल्टा P क्या होगा, डेल्टा P इज नथिंग बट योर P2 माइनस 1। तो P2 आपका कितना था 8 माइनस 10 यानी माइनस 2। प्राइस क्या हुई है आपकी डिक्रीज की है, तो ये माइनस में हो गया आपका।
तो डेल्टा क्यू हो गया, डेल्टा पी हो गया। तो ये डेल्टा क्यू की जगह पे हम क्या रख देंगे, हमने निकाला हुआ था डेल्टा क्यू की वैल्यू 1 और डेल्टा पी की वैल्यू -2। तो डेल्टा क्यू हमारा हो गया 1, क्यू हमारा क्या होगा, जो हमारी इनिशियल क्वांटिटी होगी यानी 4 रुपीज, ये हमारी इनिशियल क्वांटिटी ही हमारा क्या होगा, क्यू होगा। डेल्टा पी क्या होगा आपका, यहाँ पे है -2, पी क्या है, इनिशियल प्राइस या P1, इसको हम P1 भी लिख सकते हैं। कहाँ गया क्वेश्चन, ये था। तो ये P1 जो है वही हमारा P है, ये 10 रुपीज। इस P की जगह पे P1 की वैल्यू यानी 10 रुपीज। अब क्या है 1/4 इंटू, ये रेशियो वाले को हमने मल्टीप्लाई साइन किया, तो जो नीचे था वो ऊपर चला जाएगा, ऊपर वाला नीचे आ जाएगा, 10 इंटू -2। तो इससे हम डिवाइड कर देते हैं, ये 5 आ गया। अब यहाँ पे माइनस है यानी 5/-4, या ये आपका हो जाएगा -5/4। अब इसे हम 5 में 4 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 1.25। तो ये आपकी इलास्टिसिटी हो गई परसेंटेज मेथड से।